Hello students, I am Pradeep Patil. Welcome to my YouTube channel Online School. So students, in our last video we have already started the first chapter of your civic textbook. Okay, we have discussed the introduction part in our last video, and after that we have discussed we have seen the story. Okay, which is given here on first page in the form of images and some dialogues. Okay, so we have discussed that story also in our last video. So let us discuss further. Even we started this equal right to vote part in our last video. So let us start. The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in line with her. Kanta recognizes her employer Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. Okay, so students, here again that same story is briefly described. Okay, so what happened? I already told you. Kanta was standing in line for voting. Okay, and even she saw her employer. Okay, her employer. Who was her employer? Ashok Jain uh, uh, and her neighbor as well, Chote Lal. Okay, so what happened? She identified her employer. Employer means the person who gives job to others. Okay, employee is the person who works, and employer is a person who gives job to any person. Okay, so अशोक जैन के घर पे वो क्लीनिंग का जॉब करती थी कांता. ओके, दैट इज़ वाई ही वॉज हर एम्प्लॉयर. सो व्हाट हैपन, वो जब वो वोटिंग में लाइन में खड़ी थी तब उसी लाइन में शी सॉ Ashok Jain and one of her neighbors, Chote Lal. Okay. So, in a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in class 6 book, is called universal adult franchise. Okay, so students, here it is said that in a democratic country like India. Okay, India is a democratic country. So democratic country India में क्या होता है, जब adults means the person who is fully matured or fully grown up. Okay, fully grown. Okay, uh, so all adults are allowed to vote. Okay, irrespective of their religion, irrespective of their caste, irrespective of their education. Okay, or irrespective of their wealth, whether that person is rich or poor. मीन इसका मतलब है कि एडल्ट्स ऑल एडल्ट्स आर अलाउड टू वोट इन इंडिया इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. वो गरीब रहा, रिच रहा, और कोई किसी कौन से भी कास्ट से रहा, रिलीजन से रहा. ओके, all that doesn't matter, all are allowed to vote. Okay, all adults are allowed to vote. Okay, so here it is said that ये जो process है, all adults are allowed to vote irrespective of all these inequalities, irrespective of religion and caste. So इसको क्या कहते हैं? We call it universal adult franchise. Okay, universal adult franchise. And you have already learned this in your 6th standard in civic textbook. You have already learned what is meant by universal adult franchise. Okay, so let us discuss further. And is an essential aspect of all democracies. So ये जो universal adult franchise है, it is one of the essential aspects of democracies. Okay, the idea of universal adult franchise is based on the idea of equality, because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, has one vote. Okay, ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो आइडिया है, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, इक्वेलिटी है. इक्वेलिटी पे बेस्ड है. क्यों? क्योंकि सब एडल्ट ऑल एडल्ट्स आर अलाउड टू वोट, और सब एडल्ट्स को एवरी एडल्ट हैज़
राइट टू गिव वन वोट, सबको एक ही वोट देने का राइट है, ओके, irrespective of their religion, caste, education, okay, their wealth. Let us discuss further. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote, okay. सो कांता जब वो लाइन में वोटिंग की लाइन में खड़ी रहती है, जब वो देखती है उधर उसका एम्प्लॉयर भी खड़ा रहता है और अदर्स उसके रिच नेबर रहते वो भी रहते, तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है। उसको लगता है कि वो इस यहाँ पे बहुत इक्वलिटी मेंटेन की है, सबको वोटिंग का राइट है, इवन पुअर रिच, ओके। और उसका एम्प्लॉयर भी उसी लाइन पे खड़ा रहता है, उसको भी वेट करना पड़ता है वोटिंग के लिए, ओके। और उसको लगता है कि सबको एक ही वोट देने का राइट है, तो शी बिकेम वेरी हैप्पी, ओके। Okay, let us discuss further. But as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means, okay. So what happens students, at the end of the day, okay, मतलब इवनिंग के टाइम पे कांता जो रहती है she become less certain, okay, मतलब वो अनश्योर हो जाती है कि उसका थोड़ा बिलीफ इक्वालिटी से थोड़ा कम हो जाता है, ओके, एट द एंड ऑफ द डे। नाउ लेट अस सी ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, ओके। उसको इक्वालिटी से वो अनश्योर क्यों हो जाती है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेट अस टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ, ओके। उसका पूरा दिन कैसा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। ये जो कांता रहती है, शी लिव्स इन अ स्लम, स्लम मतलब झोपड़पट्टी जो एरिया है, बस्ती में रहती है वो, ओके। एंड बिहाइंड हर एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। उसकी जो स्लम एरिया है, उसका जो हाउस है, उसके पीछे एग्जैक्टली ड्रेन है। ड्रेन मतलब जो नाली रहती है, गंदा पानी उधर से बहता है, ओके, दैट इज़ द ड्रेन, ओके। तो उसके एग्जैक्टली हाउस के पीछे क्या है, ड्रेन है। Her daughter is sick, but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor, okay. एक्चुअली क्या होता है, ये जो कांता रहती है, उसकी जो डॉटर रहती है, शी वॉज वेरी सिक, ओके। तो उसके लिए उसको घर रहना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, शी डिड नॉट गेट अ ऑफ, उसको छुट्टी ही नहीं मिलती, क्योंकि उसने पहले से उसके जो एम्प्लॉयर रहते जिसके घर पे वो क्लीनिंग का काम करती है, सब लोगों से उसने पैसे बोरो कर लिए होते, ओके, पैसे उधार लिए रहते, तो इसलिए उसको काम को जाना अवॉइड नहीं कर सकती थी वो। तो उसकी बेटी बीमार है, तब भी उसको काम पे जाना ही पड़ता था, ओके। लेट अस डिस्कस फर्दर टू टेक क्यों मनी बोरो किए रहे थे, क्योंकि उसके जो चाइल्ड है, उसकी जो लड़की है, उसका जो बेबी है, ओके, उसको हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए शी नीड्स मनी, ओके, शी नीडेड मनी, दैट इज़ वाई शी बोरोड मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स एंड दैट इज़ वाई शी हैड टू वर्क, okay. So her job as a domestic help tires her out and finally she ends her day by again standing in a long line, okay. क्या होता है, वो डोमेस्टिक हेल्प का काम करते, क्लीनिंग का काम, ओके। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। क्या होता है, वो बहुत टायर्ड हो जाती है पूरा दिन में, पूरा डोमेस्टिक हेल्प का काम करके, और उसके एट द एंड ऑफ द डे उसे अगेन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, ओके। कौन सी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, लेट अस सी। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक the one in the morning because most of the people standing in it are poor, okay। ये जो लाइन है, ये वो जो मॉर्निंग में जो वोटिंग की लाइन में खड़ी थी, वो लाइन नहीं है, दिस लाइन इज़ डिफरेंट, ओके। ये लाइन किसकी है, यू नो, ये जो लाइन है वो हॉस्पिटल के सामने, जो गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल रहता है उसके सामने जो गरीब लोगों के जो लाइन रहती है, वो सब ट्रीटमेंट के लिए लाइन में खड़े रहते। मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब गरीब लोग ही जाते हैं, ओके। सो उनकी जो लाइन है, उस लाइन में उसको खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि शाम को आने के बाद उसके लड़की को ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास लेके आई थी, गवर्नमेंट डॉक्टर के पास, ओके। सो लेट अस डिस्कस फर्दर। वेट हियर इट इज़ गिवन, wait
uh, unlike this line. Okay, so what happened here, we have already discussed this part in our last video. Here see this dialogue, we see Jain madam and Jain sahib may stand in line to vote, but they never have to do it when their children are sick. Okay, उसका इस पर ट्रस्ट क्यों, वो अनश्योर क्यों हो जाती है इक्वेलिटी से, क्योंकि वो जब देखती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने सब गरीब लोग लाइन में रहते हैं, लेकिन उसी लाइन पे वो सोचती है कि मॉर्निंग के जब वोटिंग लाइन पे हमारे सब ए लाइन में रिच पीपल भी थे बहुत सारे, मेरा एम्प्लॉयर भी उसी लाइन में थे. ओके, बट ये जो लाइन है इधर कोई रिच आदमी कोई नहीं है. मेरा इवन जो जैन साहब है उसका भी, उसकी लड़के को बीमार रहे तो वो कभी ये लाइन में खड़े नहीं रहेंगे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, उनको कभी लाइन में वेट नहीं करना पड़ेगा. इवन नॉट जस्ट अबाउट द दिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनको किसी भी जगह पे उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली जा सकते हैं. ओके, सो उसको ये थोड़ा बात उसको लगा कि इधर थोड़ा इनइक्वालिटी. ओके, शी फेल्ट दैट हियर दैट इज़ द इनइक्वालिटी. ओके, क्योंकि उसका जो एम्प्लॉयर है वो थोड़ा रिच है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं आएगा, वो डायरेक्टली उसको लाइन में वो खड़ा नहीं रहना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. ही विल डायरेक्टली गो टू द एनी प्राइवेट हॉस्पिटल एंड ही विल immediately receive the treatment. Okay, so that is why she become unsure of equality. Okay, now let us discuss further other kinds of equality. Okay, so this page is completed. Now let us go to the next page. Okay, other kinds of equality. Kanta is one of many people who live in a democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल. ओके, सो कांता जैसे हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसके जैसे बहुत पुअर गरीब लोग हैं, वो डोमेस्टिक वर्क बहुत काम करते हैं. ओके, सो हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल. जो इक्वल लोग हैं मतलब जो एवरेज लोग हैं जो अच्छे लाइफस्टाइल रखते हैं, उनसे थोड़ा इन ऐसे लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा इक्वालिटी से थोड़ा कम रहता है, उनके इतना इक्वल नहीं रहता है. ओके, apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Okay, just poor और rich के अलावा ही जो इंडिया में लोग हैं वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें कि उससे वो इनइक्वालिटी फील करते हैं. ओके, इनइक्वालिटी के में बिलोंग करते हैं. ओके, let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in people's lives and reflects the different kinds of inequalities exist in India. Okay, so students, now we are going to see two different stories. Okay, हम ऐसे दो एकदम प्रैक्टिकल स्टोरीज देखेंगे कि उससे आपको पता चलेगा कि इनइक्वालिटी कैसी रहती है. ओके, मतलब कैसे लोग इनइक्वालिटी में आते हैं. ओके, मतलब व्हाट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज पीपल एक्सपीरियंस इन इंडिया लाइक अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके, तो ये चैप्टर में ऐसे स्टोरी थ्रू आपको इनइक्वालिटी सीखने को मिलेंगी, व्हाट इज़ इक्वालिटी और व्हाट इज़ इनइक्वालिटी. ओके, सो इनइक्वालिटी नॉट इक्वालिटी, यू आर गोइंग टू लर्न इनइक्वालिटी थ्रू दिस स्टोरीज. सो इनइक्वालिटी कैसी रहती है, कैसे पीपल इनइक्वालिटी एक्सपीरियंस करते हैं. ओके, सो लेट अस डिस्कस. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ स्टोरी. ओके, इट्स वेरी सिंपल स्टोरी, सो we will not spend much time. Okay, it's very simple and very interesting story. So let us start. One of the more common forms of inequality in India. Okay, story is there below. First let us discuss this. One of the more common forms of inequality in India is the caste system. Okay, so one of the forms of inequality is what? Caste system. If you live in a rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. Okay, if you live in a रूरल एरिया, जो रूरल एरिया रहता है, आप इंडिया में रूरल एरिया में रहे तो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि कास्ट सिस्टम क्या रहती है. ओके, कैसे लोग इनइक्वालिटी एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू द कास्ट. ओके, if you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. Okay, जब आप अर्बन एरिया में मतलब सिटी एरिया में रहोगे तो आपको
ऐसा फील होगा कि जो लोग हैं अर्बन एरिया के वो ज़्यादा कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते. ओके. But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper, and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. Okay, so students, here it is said that matrimonials means what? जो मैरिज का जो साइट्स रहता है, कभी न्यूज़पेपर में मैरिज के वेडिंग्स के एडवर्टाइज रहते कि वधू का एज इतना है, उसकी हाइट इतनी है, उसका ए इतना है. ऐसे ये देखो हियर, वेट 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 वी हैव opened the another page. Wait, okay. So here see students, here some matrimonial advertisements are given. Matrimonial means something related to wedding or marriages. Okay, जो वेडिंग और मैरिजेस का जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है, टीवी पे आता है कि उधर वधू और वर का जो रिक्वायरमेंट्स रहता है मैरिज का, किसी के हाइट, तो कभी लोग मेंशन करते हैं वी जस्ट नीड द groom or bride from this caste only. Okay, so here some examples are shown. Okay, you can read this advertisement. Okay, so क्या रहता है जब हमें लगता है कि अर्बन एरियाज़ में इनइक्वालिटी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करते इनइक्वालिटी, बट यू नो इन सच मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स पीपल स्टिल बिलीव ऑन कास्ट. ओके, उधर इनइक्वालिटी कास्ट में देखी जाती है. ओके, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि उनके कास्ट का ही ग्रूम और ब्राइड से शादी करनी चाहिए. ओके, सो हियर इट इज सेड लाइक दैट. बट जस्ट look at these matrimonials shown from a leading English newspaper, and you will see how important the issue of caste continues in the minds of highly educated urban Indians. Okay, तो ये जो आपको मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट्स है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में आता है और किसी भी न्यूज़पेपर में आता है, तो आपको उससे पता चलेगा कि इवन जो एजुकेटेड अर्बन्स इंडियंस है, जो सिटी के जो लोग हैं, वो भी कास्ट पे बिलीव करते हैं. ओके, वो भी इनइक्वालिटी पे एक्सपीरियंस करते. ओके, नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द experiences of a Dalit child attending school. Okay, now we are going to learn a story of one Dalit child who attends school. Okay, you have already read about Dalit in the class 6 book, so you have already learned what is meant by Dalit in your 6th book. Dalit is a term that the so called lower caste use टू एड्रेस देमसेल्व्स. ओके, जो लोअर कास्ट के जो लोग रहते हैं उनको एड्रेस किया जाता है दलित से. ओके, जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो बिलोंग करते दलित से. ओके, मतलब उनको दलित कहते. दलित मीन्स ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वेर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. ओके, जो ये लोअर कास्ट के लोग रहते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. डिस्क्रिमिनेट मतलब ऐसा सेग्रीगेट किया जाता है कि दिस पर्सन इज़ दलित. ओके, दिस पर्सन इज़ फ्रॉम लोअर कास्ट. ओके, सो उनको ऐसा थोड़ा इनइक्वालिटी पे ये किया जाता है, ट्रीट किया जाता है. ओके, so let us discuss further. Now let us start with the story. It's very interesting story. You will enjoy this story, so listen carefully. Om Prakash Valmiki. This story is very simple, so that is why I will rush. Okay, means I will not spend much time. I will go through each and everything, but it's very simple story. Okay, Om Prakash Valmiki is a famous Dalit writer. Okay, so there was one writer, Om Prakash Valmiki. He was a Dalit famous writer. In his autobiography Juthan, okay, he writes. उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसने, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने. ही इज़ अ वेरी फेमस दलित राइटर. तो उसके ऑटोबायोग्राफी में उसने पूरा उसका लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो हम उसका लाइफ का एक एक्सपीरियंस देखेंगे. ओके, सो ही राइट्स समथिंग इन हिज ऑटोबायोग्राफी. सो क्या लिखा है उसने, देखते हैं. ओके, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर. ओके, उसका कहना है कि मैं जब स्कूल में जाता था. ओके, स्कूल में, यस, वो जब पढ़ता था तो उसको ही हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास. उसको बाकी जो स्टूडेंट्स है उससे अलग बैठना पड़ता था क्योंकि वो दलित था. ओके, बाकी स्टूडेंट जहाँ पे बैठते थे वो उधर बैठता नहीं था, उसको अलग जगह पे बैठना पड़ता था. ओके,
एंड टू ऑन द फ्लोर, उसको फ्लोर पे बैठना पड़ता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन। ओके, जो सब स्टूडेंट्स को जो मैट मिलती थी वो कभी उसको मिलती नहीं थी, कभी यूज्ड हुई मैट मिलती थी। ओके, वो हमेशा फ्लोर पे बैठना पड़ता था उसको। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर, समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न। ओके, उसको कभी दरवाजे के डोर के पास बैठना पड़ता था, उसको कभी भी कोई भी बीट करता था, उसको मारता था विदाउट एनी रीज़न, बिकॉज ही वॉज दलित। ओके, ही वॉज ट्रीटेड वेरी डिफरेंट. So when he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. Okay, जब वो 4th स्टैंडर्ड में था तब उसका स्कूल के जो हेडमास्टर थे उसने उसको कुछ काम लगाया था स्कूल में। ओके, क्या काम लगाया था? उसको पूरा स्कूल स्वीप करने के लिए बोला था। स्वीप मतलब ब्रूमिंग, थोड़ा क्लीनिंग का काम लगाया था उसको। इवन प्लेग्राउंड भी उसको क्लीन करने के लिए बताया था। ही राइट्स, द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर दैन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट, ओके, माई बैग बिगैन टू एच। ओके, उसका बताना था कि उसका फिजिक बहुत फ्रेजाइल था, बहुत डेलिकेट, बहुत छोटा था, और उसको इतना बड़ा प्लेग्राउंड, इतना बड़ा काम करना पड़ता था स्कूल में। ओके, उसकी वजह से उसको वो जो स्वीपिंग का काम करना पड़ता था उसकी वजह से उसका बैक पेन होता था। एच मतलब पेन। ओके, उसको बैक में पेन, चोट हो जाती थी। ओके, माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट एंड डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ। उसका पूरा फेस डस्ट से भर जाता था, और कभी कभी डस्ट उसके मुंह में चली जाती थी। क्यों? क्योंकि उसको बहुत वो सब स्वीपिंग का, क्लीनिंग का काम करना पड़ता था स्कूल में। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वेर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। बाकी जो स्टूडेंट थे वो सब पढ़ाई करते थे और इसको ही पूरा स्वीपिंग का काम करना पड़ता था। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। ओके, हेड मास्टर वुड सिट इन हिज रूम एंड ही वुड वॉच दैट ओम प्रकाश वॉज क्लीनिंग और नॉट, whether he was sweeping or not. Okay, I was not even allowed to get a drink of water. Okay, he was not even allowed to drink a glass of water. Okay, I swept the whole day from the doors and windows of the school rooms. The eyes of the others, of the teachers and the boys saw the spectacle. Okay, उसको बहुत पूरा विंडोज डोर्स, ही हैड टू वर्क एवरीथिंग, ही हैड टू क्लीन ऑल होल स्कूल, इवन रूम्स, एवरीथिंग। एंड अदर्स जो स्टूडेंट्स और टीचर्स थे वो जस्ट देखते थे, लाइक अ स्पेक्टेटर, वो जस्ट देखते थे हाउ ही वर्क्स। ओके, Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to the end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. Okay, ये सब ऐसा बहुत दिन चल रहा था, वो बहुत रोज क्लीनिंग करता था। वो ये सब कब स्टॉप हुआ? जब उसका फादर था, हिज फादर वॉज गोइंग बाय हिज स्कूल। ओके, उसका फादर उसी रास्ते से जा रहा था और हिज फादर सॉ दैट हिज child is cleaning the whole school, even playground. Okay, and other students are studying in the school. Okay, so he confronted, his father confronted the teachers, and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, you are a teacher, so I am leaving now. You are a teacher, so I am leaving now, but remember this much, master. He will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him. Okay, so उसका जो father था, he took his son, his child, that Om Prakash, and he took his hand and he left the school. वो स्कूल से जाते जाते वो टीचर्स को बोला, मास्टर को, कि यू आर अ टीचर, आपको ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, और ये मेरा जो सन है वो इसी स्कूल में पढ़ेगा, और नॉट जस्ट माई ओन सन बट अदर बाकी स्टूडेंट्स भी इसके जैसे कास्ट में वो भी इसी स्कूल में पढ़ेंगे। ओके, तो वो मास्टर से वो थोड़ा ऐसा कन्फ्रंट करके उसका हिज फादर लेफ्ट। ओके, बट देर विल बी कमिंग आफ्टर हिम, मतलब बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसे इसी स्कूल में पढ़ेंगे। The second story is based on an incident that took place in one of India's larger cities. Now, students, we have already completed the first story. So, have you understood the first story? Okay, it was the story of Om Prakash, who was a Dalit writer, very famous writer. Okay, he told that how he was treated very badly because he was Dalit. Okay, in school he would work everything. He just would clean the whole school. Okay, and other students would learn
one day his father saw that, and father took his hand, and his father confronted with teachers. Okay, so now our first story is completed. Now let us discuss the second story. The second story is based on an incident that took place in one of India's larger cities, and it's common practice in most parts of the country. Okay, so what I think, we will cover this story in our next video, because if we cover it in the same video, then the video will become very longer. Okay, so we will stop here, we will continue in our next video. Okay, so this is the second part. We'll complete the remaining chapter in third and fourth part. So student, if you like my lecture, then please hit the like button, and please do not forget to subscribe my channel, because if you subscribe, then you will get the notifications of my all of my videos. And even I have uploaded 2-3 videos of your English from your English textbook as well. Okay, I am going to make videos on your English textbooks as well. You will get some videos of your English syllabus on my YouTube channel, only when if you subscribe my channel. Okay, because English is not my subject, but I'm just doing this voluntarily. Okay, so bye, have a great day. We will stop here.